Assalamualaikum students, good morning. Welcome to SDMES Boys English Medium School, Standard 9, Subject Computer. Okay, we already started chapter number 8, Basic Utilities in Ubuntu Linux. In last online session, we discussed about file and directories and operations which we can perform on file and directories, like creating new file and directories, opening existing file and directories, selecting, deleting, renaming, copy paste, cut paste operations, okay, etc. on file and directories. Okay, in today's session we will discuss about calculator and Gedit text editor in Unix Ubuntu Linux. Okay, so let's start today's session. The calculator. So first of all, how you can start calculator in Ubuntu Linux. So for that you need to use accessories menu. Okay, you can see the first point, this one. You can start the calculator program in Ubuntu Linux by clicking on accessories menu and you need to select calculator option. जब आप एसेसरीज पे क्लिक करोगे तो आपको एक छोटी विंडो ओपन नज़र आएगी, उसमें से आपको सिलेक्ट करना है कैलकुलेटर. एज यू आर क्लिकिंग ऑन कैलकुलेटर, you can see figure number 8.9, this one. This type of calculator will open, simple calculator. You can see there are only digits and 4 operations which you can perform on calculator. Which are the 4 operators are there? You can see plus, minus, star for multiplication, and slash for division. Means you can perform simple operations like addition, subtraction, multiplication and division. This is a simple calculator. Okay, as you can see in the calculator program looks strikingly similar to its hardware component, हार्डवेयर काउंटर पार्ट. आप देख सकते हो कि जैसे अपना हार्डवेयर फिजिकल कैलकुलेटर आता है उसी की तरह का ये कैलकुलेटर बनाया गया है. मीन्स इसको यूज़ करना इतना हार्ड नहीं होगा. जिसको कंप्यूटर का नॉलेज भी नहीं है, जिसको कंप्यूटर यूज़ करना आता भी नहीं है, वो भी इसको ईजिली यूज़ कर सकता है माउस को और कीबोर्ड का यूज़ करके. ओके, already we discuss about the operators plus, minus, multiplication and division. Now let's discuss about the CE and CLR keys. The CE and CLR means clear keys, both clear the display and reset the current value to 0. मीन्स क्या होगा, आपकी जो डिस्प्ले स्क्रीन है उसको क्लियर करने के लिए ये दो की यूज़ की जाती है, CE एंड CLR. ओके, और उसकी वैल्यू क्या कर देगा, वो 0 पे रीसेट कर देगा. Backspace key deletes one character to the left of the cursor every time it is pressed. अपने नॉर्मली जो कीबोर्ड पे बैकस्पेस की है उसी तरीके का यहाँ पे जो ये बैकस्पेस की है, यू कैन सी दिस इज़ द बैकस्पेस की. उसका भी काम सेम वही है जो कीबोर्ड की बैकस्पेस की है. वो एक कैरेक्टर डिलीट करेगा, बराबर है. आपका कर्सर जहाँ पे है उसको लेफ्ट साइड से वो डिलीट करता चला जाएगा. नाउ योर कर्सर इज हियर, व्हेन यू आर प्रेसिंग द बैकस्पेस की, डिजिट नंबर 4 इज गोइंग टू बी डिलीटेड. बराबर है. तो आप क्या कर सकते हो, जब भी बैक स्पेस की यूज़ करोगे, वन कैरेक्टर टू द लेफ्ट ऑफ द कर्सर एवरी टाइम इट इज़ गोइंग टू बी डिलीटेड. नाउ if you committed a mistake in entering a data or operation, you can also use undo facility of edit menu. Okay, there are some menus you can see on the top of the window. कैलकुलेटर की जो टॉप ऑफ द पैनल है उसमें आप देख सकते हो 3 मेनू है, कैलकुलेटर, एडिट, व्यू, हेल्प. हेल्प इज जस्ट फॉर हेल्पिंग पर्पस, बट दीज आर द 3 इंपॉर्टेंट मेनूज, कैलकुलेटर, एडिट एंड व्यू. नाउ आपसे अगर कुछ गलती हो रही है, मीन्स आप कुछ डेटा डालना चाहते हो, उसकी गलत डिजिट डाल दिया या तो आपने ऑपरेशन गलत इनपुट कर दिया है, तो यू कैन यूज़ एडिट मेनू एंड यूज़ अंडू ऑप्शन. वी ऑलरेडी नो व्हाट इज़ अंडू ऑप्शन. डिलीट वो आपकी जो छिल्ली लास्ट एक्शन होगी उसको डिलीट कर देगा, अंडू कर देगा, बराबर है. ऑलरेडी वी कैन यूज़ बैकस्पेस की ऑल्सो, बट वी कैन ऑल्सो यूज़ दिस मेनू अंडू ऑप्शन. ओके, यू कैन ऑल्सो यूज़ एस की वैल्यू ऑप्शन ऑफ एडिट मेनू.
ASCII value. What is the full form of ASCII? We already discussed. अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड, ओके। ये एक कोड रहता है जो प्रोग्रामिंग में खास करके यूज़ किया जाता है। तो ये कोड क्या है, तो आप जितने भी डिजिट होते हैं वो डायरेक्टली अपने यूज़ नहीं कर सकते, तो उसको एक कोड दिया जाता है। जब भी प्रोग्रामिंग करेंगे तो ये ASCII कोड यूज़ किए जाते हैं, बराबर है। और ये अगर आपको पता नहीं है तो आप यहाँ पे ये ऑप्शन यूज़ करके ASCII कोड वैल्यू वाला ऑप्शन यूज़ करके यूज़ कर सकते हो। एडिट मेनू में ASCII वैल्यू ऑप्शन यूज़ करके आप उसकी ASCII वैल्यू जान सकते हो। यहाँ पे एक एग्जांपल भी दिया गया है, यू कैन सी इफ़ यू एंटर स्मॉल ए यू कैन सी 97 इन द डिस्प्ले विंडो। यानी आप अगर ए प्रेस करोगे और आपने ASCII वैल्यू ऑप्शन सिलेक्ट किया हुआ है तो आप डिस्प्ले विंडो में 97 देख सकते हो। मीन्स क्या, इसका मतलब ये है कि स्मॉल ए की ASCII वैल्यू क्या है, 97 है। ओके, नाउ लेट्स सी हाउ टू ओपन साइंटिफिक मोड व्यू। ओके, तो ये तो सिंपल कैलकुलेटर आप देख सकते हो, दिस इज सिंपल कैलकुलेटर। लेकिन कुछ कुछ ऑपरेशन ऐसे रहते हैं या कुछ कुछ स्टूडेंट्स ऐसे रहते हैं जो साइंस रिलेटेड है, इंजीनियरिंग रिलेटेड है, तो उनको साइंटिफिक कैलकुलेटर का यूज़ करना रहता है। तो दे कैन ऑल्सो चेंज द मोड बाय सिलेक्टिंग व्यू मेनू। ओके, व्यू मेनू में जाके आप साइंटिफिक सिलेक्ट करोगे तो आपका जो सिंपल कैलकुलेटर है वो साइंटिफिक मोड में चेंज हो जाएगा। यू कैन सी दिस टाइप ऑफ कैलकुलेटर। यहाँ पे आप देख सकते हो देयर आर सो मेनी ऑपरेशंस लाइक स्क्वायर, लॉग, cos, sin, tan, okay, and there are also some other operation. You can see this type of operation you can perform, okay। so स्क्वायर रूट भी है, यहाँ पे 1/x है, परसेंटेज है। तो ये सब ऑपरेशन आप कैसे कर सकते हो, साइंटिफिक मोड सिलेक्ट करके कर सकते हो, बराबर है। Some of you might have an elder brother or sister studying science or engineering. In that case, you might have seen the scientific calculator. It has a large number additional operations useful in science, mathematics and engineering. Okay? साइंस, मैथमेटिक्स एंड इंजीनियरिंग। तो साइंस और मैथमेटिक्स इंजीनियरिंग में साइन, कॉस, टेन टेबल भी आता है, उसके अलावा स्क्वायर रूट आता है, लॉग टेबल आता है, बराबर है, स्क्वायर आता है, स्क्वायर रूट आता है। तो ये सब ऑपरेशंस आप यहाँ पे इजीली कर सकते हो, परफॉर्म कर सकते हो, बराबर है। कौन से मोड में, साइंटिफिक मोड में। देयर आर एडवांस फाइनेंशियल एंड प्रोग्रामिंग कैलकुलेटर्स एज वेल। द लास्ट वन प्रोवाइड्स कन्वर्जेशन बिटवीन डिफरेंट नंबर सिस्टम एमंग द अदर थिंग्स। ओके, तो मेन चीज़ यही है कि आप साइंटिफिक मोड कैसे ओपन करोगे और दूसरे ऑपरेशन कैसे यूज़ कर सकते हो। सो एज पर द रिक्वायरमेंट यूज़र कैन यूज़ सिंपल कैलकुलेटर, ओके, और scientific calculator. Now let's start next topic, the Gedit text editor. The Gedit text editor is a graphical editor for plain text files and documents. Okay, ये क्या है, एक सिंपल टेक्स्ट एडिटर है जो ग्राफिकल एडिटर है। प्लेन टेक्स्ट यानी अनफॉर्मेटेड। यहाँ पे अनफॉर्मेटेड बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो गेडिट टेक्स्ट एडिटर है वो अपने जो विंडोज़ में नोटपैड है उस तरीके का एडिटर है। उसमें सिर्फ आप टाइप कर सकते हो और एट अ टाइम आप प्रेफरेंस देके कलर भी चेंज कर सकते हो, स्टाइल भी अप्लाई चेंज कर सकते हो, साइज़ भी बढ़ा सकते हो। लेकिन जब सेव करोगे तो वो सिंपल ही सेव होगा, बराबर है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप कैसे उसको यूज़ करोगे। is a graphical editor for plain text files and documents. As a plain text editor, it only saves the text in the file and never any formatting. आप देख सकते हो ये कोई भी फॉर्मेटिंग के सेव नहीं करेगा, ये खाली क्या सेव करेगा, आपका टेक्स्ट को ही सेव करेगा। इट ओनली सेव्स द फाइल एंड नेवर एनी फॉर्मेटिंग, यानी फॉर्मेटिंग वो सेव करने वाला है नहीं। दिस प्रोग्राम अलाउज अस टू चेंज options like font size, color scheme, etc. But it is important to remember that these options are not saved in the file, but they become the user's current Gedit preferences for all files till they change these settings again. Very very important. यहाँ पे आप सब ये ऑपरेशन कर सकते हो। कौन से फंट चेंज कर सकते हो, फंट साइज चेंज कर सकते हो, कलर स्कीम चेंज कर सकते हो, लेकिन
जब आप सेव करोगे, बट इट इज़ इम्पोर्टेंट टू रिमेंबर दैट दीज ऑप्शंस आर नॉट सेव्ड इन द फाइल बट दे बिकम द यूजर्स करंट गेडिट प्रेफरेंस। यानी क्या, आप जब करंटली काम कर रहे हो, ऑनलाइन काम कर रहे हो, तो ये प्रेफरेंस देने के लिए यूज़ किया जा सकता है। यानी एट अ टाइम वो अपडेट करके सब देगा, आप जो कलर अपडेट कर रहे हो, साइज़ अपडेट कर रहे हो, स्टाइल अपडेट कर रहे हो, लेकिन जब आप सेव करोगे तो वो सिर्फ नॉर्मली टेक्स्ट को ही सेव करेगा, नॉर्मल साइज़ में, नॉर्मल जो सेटिंग है उसी के अंदर, बराबर है। लाइक अदर की कंपोनेंट ऑफ लिनक्स, गेडिट सपोर्ट्स मेजर पोर्शंस ऑफ यूनिकोड कैरेक्टर सेट इंक्लूडिंग मेजर इंडियन लैंग्वेजेस अरेबिक एंड चाइनीज़। देखो, जो उबंटू लिनक्स है उसका जो दूसरे भी कंपोनेंट है, बराबर है, और भी टेक्स्ट एडिटर है जो जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है आता है, उसी के तरीके से यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर है उसमें भी, तो ये गेडिट भी क्या सपोर्ट कर रहा है, मेजर पोर्शन ऑफ यूनिकोड कैरेक्टर सेट। ये एक कैरेक्टर सेट आता है, बराबर है, जो आप वहाँ पे यूज़ कर रहे हो, इंक्लूडिंग मेजर इंडियन लैंग्वेजेस अरेबिक एंड चाइनीज़। अब देखो यहाँ पे एक और चीज़ भी है, ये सिंपल इंग्लिश तो ज़्यादातर सब सपोर्ट करते ही है, लेकिन इंडियन लैंग्वेजेस, आपको पता है इंडिया में कितनी अलग अलग लैंग्वेजेस बोली जाती है, हिंदी है, गुजराती है, मराठी है, तेलुगु है, तमिल है, तो ये सब लैंग्वेजेस को भी सपोर्ट कर रहा है। साथ में अरेबिक को आपको पता ही है, आपने नॉर्मली लेफ़्ट टू राइट लिख रहे होते हैं, लेकिन अरेबिक क्या है, राइट टू लेफ़्ट लिखी जाती है, उर्दू भी राइट टू लेफ़्ट लिखी जाती है, और चाइनीज़ ज़्यादातर उसके फंड भी बड़े रहते हैं और ये कुछ इमेज जैसे रहते हैं, बराबर है। तो इस तरीके की लैंग्वेज को भी गेडिट टेक्स्ट एडिटर सपोर्ट कर रहा है। वन इंपॉर्टेंट नोटिस ये है कि यहाँ पे एक दो जगह जो है ये ग्रेट लिखा गया है, यहाँ पे भी ग्रेट लिखा गया है, वो एक्चुअल में गेडिट है, बराबर है, इट्स ए मिस्टेक। एक्चुअल में वो क्या, ऑटो सजेशन के तौर पे अपने जब गेडिट लिख भी रहे हैं, लेकिन वो उसको कन्वर्ट करके ग्रेडिट कर रहा है, लेकिन ये क्या है, गेडिट है, तो ये ज़रा ध्यान में लेना है, बराबर है स्टूडेंट्स। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द सम मेनू। तो गेडिट के जो कुछ मेनू है, जैसे कि आप देख सकते हो, सम ऑफ द मोर कॉमनली यूज मेनू ऑप्शंस अलोंग द करस्पॉन्डिंग शॉर्टकट कीज आर अंडर। अब देखो ये फाइल है, तो फाइल में कौन से मेनू आएंगे, तो जो पूरी फाइल पे अप्लाई कर सकते हो ना, वो मेनू ज़्यादातर फाइल ऑप्शंस में आते हैं। सबसे पहले है न्यू। ये शॉर्टकट कीज जितनी भी है स्टूडेंट्स, आपको याद रखनी है, यू नीड टू रिमेंबर दिस शॉर्टकट कीज। सबसे पहले क्या है, कंट्रोल एन फॉर न्यू, कंट्रोल ओ फॉर ओपन, कंट्रोल एस फॉर सेव, शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस एस सेव एस के लिए है, कंट्रोल पी प्रिंट के लिए, कंट्रोल डब्ल्यू क्लोज के लिए है, और कंट्रोल क्यू क्विट के लिए है, यानी प्रोग्राम में से बाहर निकलने के लिए है। अब न्यू में क्या है, आपको पता है, ये नई फाइल बनाने के लिए यूज़ होगा, ओपन फॉर ओपनिंग एग्जिस्टिंग फाइल, सेव फॉर सेविंग द डॉक्यूमेंट, सेव एज सेव अ कॉपी ऑफ करंट फाइल अंडर अ न्यू नेम, यानी जो फाइल ऑलरेडी सेव की हुई है उसको अलग नाम से अलग लोकेशन पे सेव करने के लिए, या वही लोकेशन पे सेव करने के लिए सेव एज ऑप्शन यूज़ होगा। प्रिंट, ऑब्वियसली प्रिंट करने के लिए यूज़ होगा डॉक्यूमेंट के लिए। क्लोज टू क्लोज द करंट फाइल, एंड क्विट द गेडिट प्रोग्राम। अब देखो ये क्लोज जो है वो फाइल को बंद करेगा, क्विट पूरा गेडिट टेक्स्ट एडिटर को बंद कर देगा, तो ये दोनों में डिफरेंस है क्लोज एंड क्विट में। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द एडिट मेनू। एडिट में सबसे पहला ऑपरेशन है अंडू। वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट अंडू इन कैलकुलेटर। इफ समथिंग गोज रॉन्ग वाइल वर्किंग ऑन अ फाइल, दिस ऑप्शन कैन बी यूज टू रिजर्व द इफेक्ट used to reverse the effect of the last operation when used repeatedly. The option goes on undoing our operations in reverse order, यानी जो भी लास्ट एक्शन होगी उसको वो रिवर्स कर देगा। यानी आपने कुछ कॉपी किया है तो वो कॉपी को दूर कर देगा, कट किया है तो कट को दूर कर देगा, कुछ डिलीट किया है तो वापस से आ जाएगा, बराबर है। तो लास्ट एक्शन को रिवर्स करने के लिए अंडू ऑपरेशन यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट, इसकी शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल जेड। फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अंडू की शॉर्टकट की ज़्यादातर पूछाई देती है। नेक्स्ट वन इज रीडू, शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस जेड, ओके। रीअप्लाई द मोस्ट रिसेंटली अनडन ऑपरेशन, दीज ऑप्शंस कैन बी रिपीटेड टू। जो भी लास्ट में अंडू एक्शन थी, आपने जो की थी उसको अगर रीडू करोगे तो वो वापस से अप्लाई हो जाएगी, बराबर है। मैंने एक ए लिखा है, उसके बाद अंडू कर दिया तो ए चला जाएगा, लेकिन वापस से रीडू करूँगा तो ए वापस से आ जाएगा, फॉर एग्जांपल, बराबर है। इसी तरीके से मैंने कुछ कॉपी किया, उसको पेस्ट कर दिया, मैंने अंडू किया तो वो वापस से चला जाएगा, लेकिन मैं वापस से रीडू करूँगा तो वापस से आ जाएगा। तो दिस टाइप ऑफ ऑपरेशन टोटली रिलेटेड टू अंडू। थर्ड, नेक्स्ट वन इज कट। शॉर्टकट की ऑफ कट इज कंट्रोल एक्स टू कट द टेक्स्ट selected with the mouse
टू द क्लिपबोर्ड। ओके, तो कट करने के लिए ये यूज़ होगा कंट्रोल एक्स। ओके, कट और कॉपी में डिफरेंस क्या है? कॉपी में आप और भी कॉपी बना सकते हो, जबकि कट में क्या है, आप सीधा मूव कर जाओगे, एक जगह से जो भी कट करोगे वो वहाँ से हट जाएगा हमेशा के लिए और दूसरी जगह पे चला जाएगा। और कॉपी में क्या होगा, यू कैन क्रिएटेड मोर कॉपीज़, और जहाँ पे से कॉपी किया है वहाँ पे भी रहेगा, और साथ में आप जहाँ पे पेस्ट करोगे वहाँ पे उसकी इतनी कॉपीज़ बना सकते हो। नेक्स्ट वन इज पेस्ट। ऑब्वियसली फॉर कट एंड कॉपी यू नीड टू पेस्ट। So to paste the text in the clipboard at the current cursor location. Next one is preference. In Ubuntu, the preferences option menu is traditionally the last menu item in the edit menu. ये लास्ट मेनू रहेगा एडिट का. It is this menu that provides option to change font size, columns etc, colors etc for the गेडिट प्रोग्राम. यानी क्या, आप अपने प्रेफरेंसेस के हिसाब से ये सब चीज़ें प्रेफरेंस दे दोगे तो उसके हिसाब से ही गेडिट टेक्स्ट एडिटर काम करेगा. कौन सी आप इसमें अप्लाई सेटिंग अप्लाई चेंज कर सकते हो? फंट साइज, कलर, ये सब बराबर है. नेक्स्ट टॉपिक इज सम ऑफ द इंटरेस्टिंग फीचर्स ऑफ गेडिट एडिटर आर. तो देखो ये सब ऑपरेशंस है, ये आप सीधे सीधे अप्लाई कर सकते हो गेडिट एडिटर में. नंबर वन इज़ एडिटिंग ऑफ मल्टीपल फाइल्स एट अ सेम टाइम. अब ये आप एडिटिंग दो तरीके से कर सकते हो. मल्टीपल फाइल्स को एक साथ में, दोनों को अलग अलग विंडो में ओपन करके, या तो एक ही विंडो ओपन करना है आपको गेडिट का और उसमें टैब अलग अलग टैब ओपन कर सकते हो और दोनों टैब में दोनों फाइल अलग अलग रहेगी. तो इससे आपको दो तीन काम आसान भी रहेंगे. दोनों को कंपेयर भी कर सकते हो. एक चीज़ में से कुछ दूसरा ड्रैग एंड ड्रॉप भी का ऑपरेशन करना है, सामने सामने ही रहेगी फाइल, तो ड्रैग एंड ड्रॉप करना भी आसान रह जाता है. आप कट कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो वहाँ पे. तो यू कैन डू ऑल दीज ऑपरेशंस simultaneously on in a same window by creating two different file in multiple tab. तो एडिटिंग अ मल्टीपल फाइल्स एट अ सेम टाइम, तो ये दो विंडो में ओपन करके भी कर सकते हो और एक ही विंडो ओपन करके अलग अलग टैब में काम करके भी कर सकते हो. नेक्स्ट टॉपिक इज डिफरेंट मोड्स टू व्यू डॉक्यूमेंट. अब यहाँ पे अलग अलग मोड आते हैं. प्रिंट व्यू मोड आता है, बराबर है. उसके अलावा और भी मोड्स रहते हैं. वो मोड में आप अलग अलग से काम करोगे तो आप उसके हिसाब से इफ़ेक्ट अप्लाई कर सकते हो. थर्ड वन इज सर्च मेनू टू फाइंड टेक्स्ट इन द डॉक्यूमेंट. मोस्ट कॉमन, आपका जो एक बड़ी फाइल है उसमें से कुछ सर्च करना चाहते हो तो आप फाइंड करोगे, तो फाइंड करके सर्च करके आप वो वर्ड वहीं से फाइंड कर सकते हो. फाइंड एंड रिप्लेस, सबको पता ही होगा फाइंड एंड रिप्लेस क्या है. आपको अकरेंस फाइंड करने हैं, आप एक रिप्लेस करके भी चेंज कर सकते हो. रिप्लेस ऑल करके जितने भी अकरेंस मिल रहे हैं एक साथ में रिप्लेस ऑल भी कर सकते हो. चेकिंग स्पेलिंग एंड ग्रामर, मोस्ट कॉमन स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक कर सकते हो आप. ज़्यादातर आपको पता ही है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में तो वहाँ पे इंडिकेटर भी आ जाते हैं. ग्रीन लाइन आ जाती है, रेड लाइन आ जाती है. ग्रीन लाइन यानी क्या, ग्रामेटिकल मिस्टेक. रेड लाइन मीन्स क्या, स्पेलिंग मिस्टेक. तो ये भी आप चेक कर सकते हो. ये गेडिट टेक्स्ट एडिटर है तो उसमें भी आपको इंडिकेटर मिल ही जाएंगे. उसके हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि मिस्टेक हो रही है वहाँ पे, ग्रामेटिकल या तो स्पेलिंग. ओके. डॉक्यूमेंट स्टेटिस्टिक्स, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, वर्ड्स एंड लाइन इन करंट डॉक्यूमेंट. आप जब ये मेनू यूज़ करोगे या ये फीचर यूज़ करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपके डॉक्यूमेंट में कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं, कितने वर्ड्स हैं और कितनी लाइन यूज़ की हुई है. बराबर है. तो ये स्टेटिस्टिक्स के ऑप्शन में आप ये यूज़ कर सकते हो. आखिर में जो मोस्ट कॉमन फीचर है वो है हेल्प मेनू. आपको पता ही है, इसके लिए ज़्यादातर तो इंटरनेट कनेक्शन होना ज़रूरी है. उस पर जैसे ही क्लिक करोगे तो उसकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी. आप उसके हिसाब से गेडिट में अगर कुछ क्वेरी हो रही है, आपको कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो यू कैन सॉर्ट इट आउट. नाउ द गेडिट मेनू टेक्स्ट एडिटर इज़ ओवर एंड आज का सेशन भी अपने यहीं पे ख़त्म करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, गुड बाय.